Đại Namo Buddhaya. Namo Arihantanam Namo Arihantanam. Namo Siddhanam Namo Siddhanam. Namo Ayuriyanam Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam Namo Vasayanam. Namo Loyavasahunam Namo Vasayanam. Eso Panchanam Mukaro Eso Panjanamukaro. Panasano Sauvapavanashano. Mangalam Savesim Mangalanam Chakaveshim. Bhavai Mangalam Padvam Bhavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Kaka. Jai Sachidanand Kulin Kaka. And Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद. So today, Pulina Dada, आज हिंदी में सत्संग है, but for the children, if you can talk about 15 minutes in English. So anybody has a question for Pulin Dada? Do you have any question? So Pulin Dada, last time we were talking about greed, but children don't have greed. Vidhi, do you have greed? So we can talk No, Radhi 15 Dada. minutes on greed, Pulin Dada. But Radhi Dada, kids don't have greed. Do you? They don't have greed. Their mothers also say like that. Their Dadi also says like that. No. What do you say, Anandji? Kids generally don't have greed, but I would put it little slightly different. They don't have mamta or minus, this thing. They can easily part with their things. They can easily give their things to someone if required. This generation of children have very less mamta. That is what Dada Bhagwan had also said. They can easily give their toys, their gifts, their possessions, if required, to someone. And one of the things, as a measurement or as a measure of whether you have greed or not, one typical example that the Bhagwan had just mentioned, that if there is a group of children and someone comes with a bowl of toffees, chocolates, and he puts it in front of them, then the one who takes, how much toffees each person takes, how much chocolates each person takes, will directly show the amount of greed or lobe that person has. कोई एक चॉकलेट ले, कोई ले ले, कोई 4-5 ले ले, कोई मुट्ठी भरीन ले ले. So depending on the number of pieces they pick up, it's a measure of the greed they have. And so to get more and more of anything is greed. Then after you get something, you are not able to share with others, to give to others. So then that is an indication of greed. People should observe whether you are able to give your things to your friends or whosoever asks. And if you are not able to give, then that's greed. And greed has a little this thing, a tendency to accumulate, to gather more and more toys, more clothes, more money, more, if you like some novels or books or pen, pencil, or whatever, more clothes, school. So whatever you things you like, if you keep on accumulating, gathering more and more, that is a sign of greed.
And it may not be there with kids, but this generation of children, they like a few toys, they play with it for some days, and then they throw it away. They don't enjoy it anymore. So that is one sign of mamta or moha. They are not too attached with anything for a long duration. Easily give up and are seeking to get more and more, uh, or a different variety or something new. So nirmohi, जैसा भगवान कहता था, they don't have attachment. That is the thing in this generation, and all of the parents know that. Yes, toys last only for a few days or a few weeks. After that, it's of no value. They always seek something new. That's the typical, what we can say as a indication of the today's generation. They are healthy, and if you learn to give and share, like I mentioned last time with the children, that you must learn to give happiness to others. I suggested some ways of how we can give happiness to others. Think and work on it. And same thing with possessions. The more you are able to share, the more you will also get. And ultimately, true happiness is in giving, whether things, affection, love, happiness, whatever you give, you get. So I would just say that much. If anybody has a question, then maybe Yeah, I would try Ariana to has answer. a question. Ariana? Go ahead. You forgot your question. Her question was, how do you decrease all the things you want? By what do you want? To someone. Do you ask for toys? Do you ask for books? What do you ask for all the time? 50 toys. She wants 50 toys. Yeah, but then what will you do with so many toys? એક બે દિવસ રમીને ફેંકી દેવાના નહીં બેટા? હા, એ તો ટિપિકલ છે. આ છોકરામાં બધાને રમકડા 2 દિવસ, 5 દિવસ, અઠવાડિયું પછી તો તૂટી બી ગયું હોય. It's okay. So basically, if you start giving things, or you divert yourself into some interesting hobbies like painting or whatever else, then the need and crave for new toys will reduce. Because ultimately you're looking for happiness, you feel happiness is there in toys and games, but after a few days they don't give you any happiness at all. I think you should learn from this. You should learn from this that you are buying toys, you are playing with toys to get happiness, but then that happiness is very, very short lived. It just lasts for a few days. Then you must understand that why should I go after something which is giving me permanent happiness? It is waste of money also, because it costs money. Instead, if that money that you spend in toys, you spend on some better ways. Try instead buying some toffees or something and sharing with your friends. The money, next time you do one thing, Ariana, you want to reduce your crave for this thing. Basically, you are trying to derive happiness from toys, and your experience shows that that happiness does not last long. Then you should now go for something that will give you inner happiness. You should go for that happiness which is not dependent on toys. Without toys also, if you are happy from inside, that is what you should be aiming for. And one of the suggestions is that the money you spend in toys, you should say, Mummy, never mind, we will put it in a piggy bank. And after you collect some money, and then you give some small gifts, maybe a pencils or pen or maybe some chocolates, and share it with your friends. And the happiness that they get when you share will give you immense amount of happiness to you. You will feel so happy from inside
that you will wonder that without getting toys, without playing with toys, I'm so happy from inside. And that happiness will last much longer than the happiness you get from playing with toys. Because toys have so many other disadvantages. If the toys don't work, you feel unhappy. If someone takes away your toy, you feel unhappy. If your toy break down, you feel unhappy. If mama and daddy don't allow you to play with your toys, you feel unhappy. If your friend takes away your toys, your sister takes away your toys, you feel unhappy. So there is so much of unhappiness. If instead, if you give happiness by sharing the money on your toys, then you feel so happy from inside that you feel it's not worth buying more toys. Okay, so it's not the toys that you want. What you are really seeking is happiness, and this happiness you will get this way. Okay. So Pulinananji, you shouldn't compare with your friends how many toys they get and how many toys her parents get her. That you should not compare, because you see, even after you compare, and what will happen if your friend has got five, you will try to bring five, or you will try to bring six twice. But then if someone else brings six, then again you will want to have some more. And in the process, you will lose the happiness that you have got in your existing toys. So you should never compare, but you should instead give. That will give you more happiness, and once you get inner happiness, then that comparison will stop. Don't Yes. compare yourself with others. Never, never, never compare. Otherwise it will always be a competition. You will always compare and you will compete, and in competition one can never be happy. So in fact, whatever toys you have, whatever good things that you have, you will not able to enjoy that. Whatever happiness you have, you will not able to enjoy that, and instead you will always be unhappy. In spite of having the best of toys, in spite of having best of dress, in spite of having the best of everything, you will be unhappy, and you will not be able to even enjoy the love and affection your parents are giving us. So do you want to remain unhappy? If you want to remain unhappy, you can compare. You want to remain unhappy? He's asking, no? So you should not compare. Okay. Do you, Ariana, Vizi, do you share your toys and everything with your sister? Yes. Yes. Yeah. Anything your sister asks, Ariana, you give? Yes. Oh, very good. So the Pulindada, they are good children. They share with the kids. But then, Ariana, you always want more, more, more. No? If you want more, 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 that is great. And now she has decided she will not compare any with her friends how much toys her friend has. If she will not compare, then she will not need more. I would rather say, rather than comparing, spend more time with the toys that you have. You will get more happiness, because ultimately you want happiness, not types. And your happiness should not hinge on how much toys other person has, how much clothes other person has. If you can never be, your happiness should not depend on other person's possessions. It should be your own independent happiness. Ariana, you like to share things with your friend or Ariana? To share? Yes. Ah, Who very does good. Very good. Now, you know what? I'm giving you homework to all of you. Next time, you have to tell me how much things you have shared and how much happiness you have given to others, like I told last time. Every time you listen from others, this time I'm going to ask you whenever I come next in the evening, maybe after a fortnight roughly. So everybody is now going to answer me and not ask me. હવે સવારનું એવું થઈ ગયું છે. Yeah, but question, okay.
Okay, everybody. Kuchi, you like to have more stuff? More and more and more? Yes. What do you like to have more and more and more? Hmm? How about Vidhi? Vidhi, you want more and more? Yes. What do you want more and more? મોબાઈલ બીકોઝ અત્યારે મારી પાસે એક મોબાઈલ તો છે તો બી મને એક વધારે લેવાની ઈચ્છા છે હજી. Oh, Pulin Dada, that is good. હા ઇટ્સ ઓકે. શેના માટે? હિન્દી 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 હિન્દીમાં બોલીએ. યાર ઇંગ્લિશમાં બોલવાનું હતું. ના હવે હિન્દી આવી ગયા. No problem. You can speak in Hindi now. હા ચાલો, એ તો ઠીક છે. આ તો થોડોક તો મોહ રહેવાનો, થોડોક મોહ हिंदी हिंदी રહેવાનો. हिंदी अरे, हिंदी थोड़ा बहुत तो मोह रहेगा, थोड़ा बहुत तो बच्चों का मोह रहेगा, बट उसको मोह कंट्रोल में रखना, जरूरत है उस हिसाब से रखना. अपने माँ बाप देखो, चलो एक बात मैं बता दूं आपको सब लोग को. हाँ, बच्चों के लिए भी काम में आएगा और बड़ों को भी काम में आएगा कि ये जो हम चीज लेते हैं, मानो आपने मोबाइल या कुछ खरीदा, यू वांट मोर, और चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको भौतिक चीज और चाहिए. हाँ? भौतिक है ना, कोई भी भौतिक चीज चाहिए ना, वस्तु है, कपड़े है, खाना है, घूमना है, जो भी है. तो इतना याद रखना, जितना आप ये मांगते हो और जितना आप खरीद के लेते हो, जितना उसको भुगतते हो, तो उसमें आपका जो पुण्य है वो खर्च हो जाता है. हमारे जितने भी चीज हम लेते हैं हमारे शरीर के लिए या हमारे खुद के शौक के लिए, तो वो सब हमारा पुण्य उसमें खर्चा हो जाता है. तो और फिर अगर हमें आत्मा का सुख के लिए अगर चाहिए, तो उसमें फिर बैलेंस कम हो जाएगा. और दूसरी बात, जितनी पुण्य हम हमारे लिए वापरते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो वो जो हमारे लिए वापरते हैं ना चीज, कोई भी वस्तु, खाना पीना, टॉयज, गिफ्ट्स, तो वो सब गटर में गया. और जितना हम दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, तो वो सब हमारे साथ आएगा या हमको रिटर्न में खुशी भी देगा, सुख देगा. और खुद के लिए जितना वापरा वो सब गया गटर में, यानी उसका फिनिश हो गया. अपना पुण्य जो है आपका, गुड लक, that good luck, that पुण्य is all exhausted, खत्म हो गया. दूसरों को दिया तो अपने को और भी खुशी मिलेगी. तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप लोग याद रखना कि खुद रखो, वापरो, ऐसा मैं ना नहीं कहता हूँ, थोड़ा करो, आराम से एंजॉय लाइफ, ऐसा नहीं है, लेकिन सोचना एक्सेस ना हो जाए. जरूरत जितना रखने का, थोड़ा रखने का कंपेयर. और एक अंदर की भावना क्या रखने की कि ये जो मेरी पुण्य है वो एक आत्मा के लिए मेरे यूज हो जाए या दूसरों के उपयोग में आए, मन वचन का या परोपकार में उपयोग में आए, ऐसी एक भावना रखना. अंदर की एक भावना है, तो उस हिसाब से वो इट विल सर्व एज अ माइलस्टोन, एक गाइडलाइन रहेगी आपके लिए, मापदंड रहेगा कि जिंदगी में मेरे पास 100 रुपये किसी ने गिफ्ट दी, तो मैं खुद के लिए लूँ या दूसरों के लिए लूँ, सेविंग करूँ, ऐसा. और अगर आपके पास ये प्रिंसिपल है कि जितना खुद के लिए गया वो गटर में गया, जितना दूसरों के लिए गया वो काम में आया, तो आपको हमेशा के लिए वो काम में आएगा, ये प्रिंसिपल. क्योंकि देखो, आप कोई भी चीज़ ले लो, सपोजिंग आपको किसी ने बर्थडे में प्रेजेंट दिया, 100 रुपये का गिफ्ट दिया, उसका आपने कुछ खाना लिया, अच्छे चॉकलेट्स या कुछ खाया, तो वो तो ऑब्वियसली गटर में जाएगा दूसरे दिन. कुछ अगर अपने कपड़े वगैरह पहने लिए, तो वो थोड़ा टाइम आप लोगे, बाद में वेस्ट किसी और को जाएगा, अल्टीमेटली विल गो टू गटर. कोई भी मटेरियलिस्टिक, कोई भी भौतिक वस्तु अल्टीमेटली खलास हो जाने वाली, वो आपके लिए आपने वापर दी, और दूसरों को खुशी दे तो आपको रिटर्न में खुशी मिलेगी. तो ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है और महात्माओं के लिए भी बहुत उपयोगी है
कि जितना हम अपने स्वयं के लिए वापरे वो गया गटर में और पार्क पर दूसरों के लिए उसका उपयोग करते हैं, जो भी मन वचन काया है, लक्ष्मी है, हमारे पास कोई टैलेंट है, तो वो हमेशा इट इज कैरी फॉरवर्ड। बहुत बड़ा, इसलिए दादा भगवान ने अपने जीवन दरमियान भी उनकी जितनी भी पुण्य थी उसमें से बहुत कम खुद के लिए वापरा। उनका तो एक लाइव एग्जाम्पल भी है, हम सब जानते हैं कि घर खर्च के लिए भी वो इतने ही पैसे देते थे जितना अगर वो उनकी क्वालिफिकेशन यानी एसएससी में फेल थे वो, तो एसएससी फेल हुआ व्यक्ति नौकरी में अगर पैसा कमाता है तो कितना कमाता है, उतने से ही उन्होंने घर चलाया। भले वो धंधा करते थे बट ही मेंटेन्ड दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि इतना, बाकी सब पैसा उन्होंने दूसरों के लिए दिया, जिन्होंने मांगा उनको दिया। फिर आगे जाके महात्माओं को तो स्टेज में तो उनका ही महात्माओं की कम, तो खुद के पैसे से यात्रा भी कराते थे। 1-2 दिन के ऐसे कहीं के ट्रिप होती सत्संग का, ऐसा घूमना फिरना, तो खुद के पैसे से भी कराते थे। उन्होंने खुद का पैसा जगत कल्याण में वापरा, दूसरों के सहायता के लिए यूज किया, और खुद के लिए तो बेयर मिनिमम इकोनॉमी इन ऑल। उन्होंने खुद के कपड़ों के लिए या खुद के शरीर के लिए, वो ब्रश होता है ना टूथब्रश, तो टूथब्रश भी पूरा यूज करते थे एंड तक, जब तक Pultan ji, I think we lost him. तो उन्होंने उनको खुद के लिए ब्रश भी वापरते थे तो एंड तक यूज करते थे। कपड़े भी ऐसा नहीं कि रोज रोज का शर्ट धोने को डाल दिया, रियली मेला हो तो ही डाल सकते थे। तो इकोनॉमी उन्होंने खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए बहुत ही मिनिमम यूज किया है, और सब चीज दूसरों के लिए। ये कुदरत का सिद्धांत है, एक मनुष्य जीवन के लिए तो हेल्पिंग है ही, और मोक्ष मार्ग में जो अत्यंत हेल्पिंग है। मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए मिनिमम थिंग्स फॉर आवर सेल्स, अपने खुद के लिए कम से कम, और बाकी सब बरोबर। ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत दादा भगवान के जीवन से मैं आपको कहूँ। ठीक है विधि? हाँ ओके, तो આપણે આરવ का क्वेश्चन ने बाद में कंचन भाई पहले आरव का क्वेश्चन है तो ले लेगा, बाद में आपका लेगा। आरव? जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा यह प्रश्न है कि मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक है। जैसे मुझे कहीं घूमना है, जैसे मेरे को कोई कंट्री जाना है, दूसरी कंट्री जाना है, घूमने का बहुत शौक है, तो उसे कैसे दूर करें? नहीं, घूमने का शौक है तो रखो, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना। सजा सज जब आपको है ना, ये जान के रखो कि ऐसा शौक है, और आपका वो शौक कुदरत पूरा करेगी, और जितना कुदरत सजा सज पूरा करती है उतना निकाल कर दो, और अंदर से भावना करो कि ये अभी इसमें से निकलना है। ये घूमने से जो मैंने सुख का आरोपण किया है, तो क्या हम सुख का आरोपण करते हैं कि यहाँ जाऊं, तो शौक होता है, वो 5 इंद्रियों के सुख में से एक में आ जाता है वो। तो जी। आज तो हमें ओपिनियन है, हमारा जो अभिप्राय है उसको रिवर्स ही करना है, उल्टा करना है कि अभी ये जो शौक है ये ऐसा ना हो भविष्य में, और मैं केवल आत्मा और मोक्ष की ओर प्रगति करूं, ऐसे एक रिवर्स भावना ही करनी। तो डिस्चार्ज में जितना होगा वो सज होने देना, और भावना रिवर्स करो तो आस्ते आस्ते उसमें से निकल जाओगे। जी। मैं गारंटी देता हूँ कि जो आप लेके आए हो ना घूमने का अप्रयास, यानी सामान्य थोड़ा रहेगा यहाँ जाने का, वो छोड़ देने का, और कुदरत के ऊपर छोड़ देने का, दादा को छोड़ देने का। देखो तो सही ये कब पूरा होता है, उसके पीछे लगने का नहीं। तो कुदरत अपने आप अगर तीव्र होगा तो पूरा करेगी, और अगर नहीं करती है तो उसको कैंसिल कर देना, उसके पीछे नहीं लगने का, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसा रखने का नहीं। या ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो वो आपके जितना व्यवस्थित में है ना उतना होगा। और ओपिनियन हमारे रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। मन के अंदर जो खड़ा विचार खड़े होते हैं, फिजिकली शौक है यानी मन में विचार खड़े होंगे ना, यहाँ जाए वहां जाए मम्मी, विचार जी मन से शुरू होती है। जी तो उसमें ऐसा रखने का कि ये अज्ञान अवस्था में ये ऐसे इच्छा चार्ज करके लाए हैं, तो आज अभी रूपक में डिस्चार्ज में आ रही है इच्छा। तो अभी मेरी इच्छा ऐसा नहीं है, मोक्ष जाने के सिवाय केवल शुद्धात्मा सिवाय कोई विनाशी चीज चाहिए नहीं। तो ये आज का पुरुषार्थ है। जी उल्टा उल्टी ऐसा शक्ति मांगने की, दिवस शक्ति मांगने की, और जी बाकी व्यवस्थित के ऊपर छोड़ देने का। वो मार ठोक के आपको लेके जाए तो जाने का, नहीं आता है तो अपने तो अपना उल्टी इच्छा आज की ज्ञान के अनुसार शुरू रखने की, चालू जारी रखने की। तो आज का पुरुषार्थ भी आ जाएगा, बाकी डिस्चार्ज का होगा तो कंपलसरी पूरा भी हो जाएगा। उसमें हम तन्मयकार है नहीं, तो नया आगे कुछ उसका बीज पड़ने वाले नहीं है, और पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वितराग भाव से पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। जी। ठीक है। और स्वामी जी जैसे कि टीवी में तो ऐसा होता है कि टीवी फोन करने का मतलब फोन करने का लोभ रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं कर पाऊँ, अगर 10 मिनट टाइम है तो आधा घंटा कर लूँ, ऐसा होता है। तो उसको कैसे दूर करें? क्या करना है फोन पे? जैसे फोन पे अगर गेम खेलने का टाइम 10 मिनट है तो ऐसा होता है कि आधा घंटा खेल लेता हूँ, तो उसको कैसे कम करूँ? हाँ, मैंने वही कहा ना कि वो क्या है कि हमको उसमें से सुख मिल रहा है ना, उसमें आनंद आ रहा है, इसलिए थोड़ा बढ़ता है। बट बेसिकली उसमें तो मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि देखो ये इतना करो, कल मिलेगा। वो जो है ना, वो माइंड मैनेजमेंट है, मन को मैनेज करने वाली बात है। तो उसको मन को बोलने का भाई चलो आज 10 मिनट है, बाकी का तू कल, मैं कल दूंगा, फिर मैं कल दूंगा, ऐसे ऐसे उसको अटा के बटा के इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे खाने की तो बहुत अच्छे लगते हैं, मानो कोई पकवान या मिठाई अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला अच्छे लगते हैं, तो कहीं पर जाके तो रसगुल्ला कितने खाओगे, जितने पेट में जाएंगे उतने ही ना, बाद में तो नेक्स्ट डे पे ही जाएगा। जी तो वैसे उसको बोलने का देखो गेम मिलेगी, कल मिलेगी, कल मिलेगी, ऐसा करके माइंड को थोड़ा हटा के पटा के उसको उसमें से निकल जाने का है। पर स्वामी जी ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है कि 10 मिनट मतलब जो कल का है वो आज ही कर लेता हूँ और कल भी करूंगा, और फिर कल भी ऐसे ही होता है, तो ऐसे चलता रहता है। हाँ, तो उसको बोलने का भी, तू तो मोक्ष जाने वाली बात कर रहा है, मन को बोलने का, तुम तो मोक्ष जाने की बात कर रहे हो, सेवा करने की बात कर रहे हो, और अभी तो तुम ऐसे छोटे छोटे चीज में पड़े रहोगे तो कैसा होगा काम तुम्हारा। बेसिकली उसमें सुख का आरोपण किया है, इसको बोलने का चल तू 10 मिनट ऐसा चाहे तो कुछ और कुछ कर ले, कुछ दूसरा कोई एक्टिविटी में उसको डाइवर्ट कर देना। जी डाइवर्ट करोगे ना तो मन का जो मन जो बूम मारता है ना अंदर से, वो कम हो जाएगी उसकी। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई। जय सच्चिदानंद पुलिराम जी, दीपकांत जी, जय सच्चिदानंद. I don't have a question, but I want to share something. कल के व्हाट्सएप पे जो पिक्चर आया था दादा भगवान का, और नीरूबेन साथ में है, और दादा भगवान अपने बाल कटवाते हैं, तो I was fortunate, happened to be there. फिर दादा भगवान को बाल कटवाने थे, तो नीरूबेन ने बताया कि दादा भगवान को बाल कटवाने हैं, तो इधर नजदीक में कोई बार्बर शॉप है। तो मैंने बताया कि हाँ है, एकदम बाजू में ही है। तो बोलते नीरूबेन ने बताया कि बार्बर घर पे आएगा। मैं बोला इधर तो ऐसी कोई स्टाइल नहीं है कि वो घर पे आके करे, लेकिन मैं आई कैन गो देयर एंड आस्क हिम, अगर वो तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं उस बार्बर के पास गया, उसके पास मैं अपना बाल कटवाता था, तो मैं उसको जानता था, वो मुझे इतना करीब से नहीं जानते थे। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई आते हैं और हमारे स्पिरिचुअल लीडर इधर है और उनको बाल कटवाने हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा है तो वो इधर नहीं आ सकेंगे, तो आप घर पे आएंगे। तो
ये दादा भगवान की कृपा कैसी है, देखो ये तो एक ही बार बोला वो तैयार हो गया, वो आया, फिर मैंने दादा भगवान को बताया, मैं बोला ये दादा ये तो एकदम तैयार हो गया बिल्कुल जल्द। तो मैं बोला ये भी कितना नसीबदार है, वो कितना लकी है कि आपके बाद उनको वो कर देगा। बोलता है हाँ उसका तो हो गया, काम हो गया। तो मैं ये पिक्चर की ये बात बताना चाहता था, इसलिए मैंने आज ये बात बताई आपको कि वो कितना लकी है। बार्बर भी वो दूसरे कंट्री का है, फिर भी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सही बात है। वो तो ज्ञानी पुरुष का एक योग बल होता है। ये 14 योग का नाथ है, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए इनको जो इच्छा होती है वो कुदरत तो इजीली पूरा करती है। इसमें हम सब निमित्त बन जाते हैं, खाली हमको निमित्त करने हैं। तो जो कभी हुआ नहीं है ऐसी चीज घटना होती है, बार बार नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन ज्ञानी पुरुष है तो वो प्रेरणा होती है। इधर हाँ, तो ये निमित्त इधर तो कोई घर पे कोई जाता ही नहीं है, हाँ, तो ये वो निमित्त डॉक्टर भी नहीं आते कभी घर पे। नहीं, उससे हमें पता चल जाता है कि वो ज्ञानी पुरुष की दशा है और उनकी दशा की वजह से उनको हमारे सहायक संजोग मिल जाते हैं। इसलिए वो तो वो काम बन गया, वो देखने की बात है। वो उनका ऐश्वर्य था, उनका ऐश्वर्य था कि वो घर पे आ गए, हम तो निमित्त है। उनकी बात एक ही बार बताया और तैयार हो गया। हाँ, वो तो वही तो कह रहा हूँ, उनका ऐश्वर्य है वो उसके पीछे देव देवियों की सत्ता होती है, तो धड़ धड़ काम हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, हम निमित्त है खाली। हाँ, और आपको करने का है ऐसा, उस दशा पे पहुंचने का है तो बोलो। हाँ वही तो हम इसलिए तो इधर इकट्ठे तो होते हैं, हमें उधर ही पहुंचना है ना। जितना हम आज्ञा का पालन करेंगे, जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा ना, ये हमारे साथ भी हमारा भी एक ऐश्वर्य खड़ा होगा, और हमको भी एक व्यवहार में जो है ना, व्यवहार में थोड़ी इजीनेस आ जाएगी। नॉट दैट बार्बर विल कम टू अवर हाउस, बट व्यवहार अपनी जो भी व्यवहार की रिक्वायरमेंट्स होगी वो सजा सच पूर्ण हो जाएगी। अब मिनिमम एफर्ट्स के साथ, मिनिमम प्रयत्न के साथ वो चीज पूरी हो जाएगी। बट ये साइड इफेक्ट्स है, या उसका क्या है कि भाई पुरुषार्थ का एक व्यवहार में एक रिजल्ट है, साइड रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना, दैट शुड नॉट बी आवर मेन ऑब्जेक्टिव। हमारा पुरुषार्थ का वो नहीं, हमारा पुरुषार्थ का तो ये पूर्वज से मुक्त होने का है। हम कहीं पे भूल गए हैं सारे महात्मा लोग कि ये जो हम सत्संग सुनते हैं, 5 आज्ञा की बात करते हैं, या अन्य अनेक प्रकार से दादा की बात को समझते हैं, तो वो व्यवहार की निराकुरता तो बाई प्रोडक्ट है। मुख्य तो हमको इस हमारे फाइल नंबर 1 से मुक्त होने का है। फाइल नंबर से 1 से मुक्त हो, मोक्षना यानी जन्म मरण से मुक्ति, मोक्षना यानी कर्म के खत्म करना यानी शरीर का जो जो मिला है, शरीर क्या है, वो कर्म के चार्ज किए हुए परमाणु ही है, तो चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी हिसाब चुकते हो जाएगा, तो परमाणु शुद्ध होकर निर्जरा हो जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फाइल नंबर 1, जिसका जिसका उपार्जन यानी जिसको हमने ही खड़ा किया है, इस फाइल को हमने ही फाइल मुझे ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा हस्बैंड, ऐसा वाइफ, ऐसे बच्चे, ऐसे नौकरी, ऐसे पढ़ाई, ये हमने ही चार्ज किया हुआ है। अभी हमको उसका निपटारा लाने का है ताकि हम हमारे अनंत सुख में हम प्रस्थापित हो जाए। तो एक अपेक्षा से बाहर की फाइलों का निकाल है क्योंकि, और दूसरी अपेक्षा से हमारी मेन तो फाइल नंबर 1 का निकाल करना। इतना भी अगर समझ में आ जाए सबको कि मुझे परेशान बाहर वाला नहीं, मुझे परेशान फाइल नंबर 1 ही करती है। हमें परेशान हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा क्रोध मन वाले लोग कोई परेशान करता है। परेशान अंदर है और हम बाहर रिपेयरिंग करते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं या दूसरे संजोगों को हटाने की कोशिश करते हैं।
प्रतिकूल संजोगों को हटाने की कोशिश करते हैं। अनुकूल संजोग चाहिए और प्रतिकूल नहीं चाहिए, तो वो जाके बात आ गई संजोगों में संजोगों की प्रीति करते हैं। पहले तो हम हमारे शरीर की प्रीति करते हैं, उसको अच्छी तरह से रखना है, तो वो पुष्कर परिणति हो गई। बाहर के अच्छे संजोग से तो वो भी पुष्कर परिणति हो गई। बात करते हैं मोक्ष जाने की, और रक्षण तो हम दुनिया भर का पुष्कर का ही करते हैं। मेरा शरीर, मेरा कंफर्ट और मेरे बाहर के संयोग, हाँ प्रयत्न हो सकते हैं, प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, पर सामान्य और सहज भाव से। और जितना हम इतना तप करेंगे, जितना प्रतिकूल संयोगों को स्वीकार करके उसको जमा कर देंगे, तो उतना हमारा मोक्ष जल्दी होगा। हम एक सामान्य टेंडेंसी रहती है, सबके लिए नहीं, तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि प्रतिकूल संयोगों को जल्दी से पूरा करने की एक भावना रहती है। तो प्रतिकूल संयोगों को जल्दी से पूरा करने के पीछे जो उपयोग जाता है, उसके पीछे जो टकराव होते हैं, उसके पीछे जो फिर अंदर निष्कंकाश होता है, वो बहुत हानिकारक है। जो भी प्रतिकूल है वो अधिक तप तप कब करेंगे? वो अधिक तप में उल्टा जल्दी निर्जरा हो जाएगी, और जल्दी निर्जरा हो जाएगी तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तप करते समय ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, तो ज्ञान पक्का होगा। प्राप्त संयोगों में जो भी आ रहा है उसकी स्वीकृति, हाँ, कभी उसको हटाने का नहीं, एज फार एज पॉसिबल, बियॉन्ड लिमिट्स नहीं जाने का, शरीर की क्षमता को ध्यान में रख के करने का, तो स्ट्रेस भी रखने का ऐसा। तो ये बहुत जरूरी है। मोक्ष की बात करते हैं और रक्षण पूरा हम विधान जी, जो हमने लास्ट टाइम भी में जो लोभ की बात बताई थी, तो पूरा क्या है? लोभ यानी बेसिकली क्या है? तो गैदर, इकट्ठा करना, फिर वो पैसा हो, वस्तु हो, मान हो, मुझे और ज्यादा मान मिले ना? तो मुझे अगर कोई मेंटल गेम्स है, वो सुडोकू है, चेस है, ऐसा कोई भी, उसमें से मजा आता है तो मैं वो ज्यादा से ज्यादा करूंगा। या कोई वस्तु है, बुक्स मुझे बहुत पसंद है तो मैं किताबें ज्यादा जमा करूंगा। कोई भी चीज ज्यादा जमा करना वो लोभ नहीं जाएगा। और हमको अगर मोक्ष जाना है तो ये जमा करने की जो टेंडेंसी है, उसे मोक्ष जाना है। वजह से जितना मिला आया और छोड़ दो, आया भुगतो छोड़ दो, आया भुगतो छोड़ दो, क्योंकि एज इट इज आयुष्य पूरा होने वाले, सब छोड़ के ही जाने वाले हैं। कोई एक चीज साथ में आने वाले, पोजेशंस भी नहीं आएंगे, भौतिक वस्तु भी नहीं आएंगी, लक्ष्मी नहीं आएगा, हमारे कोई कोई शरीर के साथ संलग्न हो, शरीर के नाच में, तो जो साथ में आने वाला नहीं है तो उसके पीछे क्यों? हम सब जानते हैं, फिर भी वो पोजीशन जो है ना, उसका जो उसको जाने नहीं देना है, वही हमको हमारी वो वीकनेस है। इसलिए ज्ञानी पुरुष के पास समझना है ना कि हमारे जो प्रकृति में लेके आए हैं, उसके साथ जो हम समझ लेके आए हैं, तो समझ में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, कौन सी समझ सही है, ताकि वो मोक्ष मार्ग में हमें हेल्प करे, मुक्ति के रास्ते पे हमें सहायता करे। समझ कोई परिवर्तन करना है, उसको बदलना है थोड़ा बहुत। कोई पोजीशन है, बट क्यों? तो कि सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ, उसमें सुख का आरोपण दूसरों ने किया इसलिए मैंने भी किया, इसलिए मैं ये वृत्ति आती है। अभी वो अज्ञान अवस्था में हम भर के लेके आए, इसलिए वो आज इफेक्ट दे रही है। आज का ज्ञान क्या कहता है कि वो इफेक्ट के सामने आज को ओपिनियन चेंज करो अंदर से, कि ये सब छूट जाए, ये सब जमा नहीं करने का, दादा भगवान जैसे सहज होने का है। तो ऐसी शक्ति मांग 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 करोगे ना, तो आहिस्ते आहिस्ते वो अपने में उत्पन्न होगी। और जो हमारी पकड़ है या लोभ है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुला हो जाएगा। और पैसे की मछली की बात थोड़ी जो लास्ट टाइम बताई, उसमें ऐसा है कि लोभ छोड़ने की बात की ना, उसमें सॉल्यूशंस थे दो तीन, तो 5-6 सॉल्यूशंस थे उसमें। तो क्योंकि फर्स्ट थिंग इज के वापरो पैसा, अगर पैसा नहीं छूटता है तो वापरो, दूसरों के लिए वापरो, यात्रा करो, दान करो, या तो फिर तो वो अगर वो जितना हो सके ना वो गुड है। और अगर हमने नहीं छोड़ा तो क्या करेगी मालूम है? लोभ के दो आपको, लोभ के दो है। एक तो हम खुद पूछताछ करके उसके ऊपर काम करते हैं,
और हम नहीं करेंगे तो कुदरत हमारे पास छुड़वाएगी। हाँ ये लास्ट टाइम बात हुई नहीं थी, कुदरत जिसके पास भी लोग ज्यादा है तो कुदरत उसको छुड़वाती है, मार ठोक के छुड़वाएगी। कैसे छुड़वाएगी? उसको कोई घाटा आ जाएगा, धंधे में बड़ा घाटा आया ना, तो जितना सब जमा किया है गया फुल, या तो घर में बड़ी चोरी हो जाएगी, या तो कोई बड़ी बीमारी आएगी जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो एक तो इस प्रकार से जो कंपलसरी वो कुदरत मार ठोक के छोड़ देगी। या दूसरा, कोई हमें चीटर मिल जाएगा, दुतारा मिल जाएगा जो हमको चीट करेगा, हमको बोले ऐसा ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करो बहुत मुनाफा होगा, वो लेके जाएगा और पैसा सब पानी में गया। तो ये कुदरत है ना, लोभ को तोड़ने के ये दो नियम रखे हैं। तो स्थूल भाषा में जानवर को बताया ना कि चींटी सब जमा करती है और फिर उंदर आके उसको खा जाता है। उंदर ने जमा किया वो बिल्ली खा जाती है। ऐसे इंसान ने भी बहुत जमा किया ना, तो इसको कोई चीटर मिलेगा या कुदरत उसको कोई लॉस देगी और उसका पूरा जमा हुआ चीज चला जाएगा। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोभ ना हो। उससे आगे की एक बात बताता हूँ कि आगे की बात ऐसी है कि दादा भगवान ने एक नियम बताया है कि लक्ष्मी की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे हम फ्रूट्स लाते हैं तो वो कुछ समय तक हम रख सकते हैं, बाद में वो खराब हो जाता है तो उसको कंज्यूम कर लेना पड़ता है ना। दवाई की जैसे एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद उसका और खलास हो जाता है। तो हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे हमारे शरीर की भी एक्सपायरी डेट है, राइट इस तरह से लक्ष्मी की भी एक्सपायरी डेट होती है। और लक्ष्मी की एक्सपायरी डेट 11 साल की है। आज जो लक्ष्मी हो 11 साल के बाद अगर हमने ऐसे ही रखी तो वो फिनिश हो जाएगी, विल गेट कंज्यूम, स्पेंड, डिस्ट्रॉयड, व्हाटएवर, अपने पास नहीं रहेगी वो। बट अगर उसको रिसाइकल हो गया तो वांदा नहीं है। अब ये बहुत बड़ा कुदरत का नियम उन्होंने ओपन किया है जो जल्दी मुझको मालूम नहीं शास्त्र में है कि नहीं। दूसरी बात बताइए कि ये जो मकान है वहाँ जो उसका भी एक्सपायरी डेट होती है अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स अप्रोक्सीमेट, यानी उसको फिर रिनोवेशन रिपेयर किया तो एक्सटेंशन मिल गया ऐसा। थर्ड थिंग ऑफ पोजेशंस, टिपिकली क्या होता है, आदमी पैसा जमा करता है, आदमी सोना जमा करता है, आदमी मकान बनाता है। तो these are the some examples yes उन्होंने ओपन अप किया है। और जो गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड की एक्सपायरी डेट भी होती है अराउंड 50 ईयर्स, 50 साल। तो वैसे ही रहा तो खलास हो जाएगा। बट टिपिकली इंडिया या कहीं भी फॉर दैट मैटर क्या होता है कि जो शादी ब्याह में गोल्ड आता है वो फिर उनके बच्चों की जब शादी होती है तो उसमें थोड़ा रिसाइकल हो जाता है, तोड़ते हैं उसको बनवाते हैं तो रिसाइकल हो गया तो एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये एक नियम है। इसमें पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, संपत्ति को 4 भाग में डिवाइड कर देते थे। क्या 25% है ना वो धंधे में लगाते थे, बिजनेस है तो 25% कहीं पे ब्याज पे रख देते थे, 25% का गोल्ड लेते थे और 25% मकान जमीन जायदाद में रखते थे, जमीन या मकान में, ताकि वो कभी नादारी नहीं आवे, उसको कभी बैंकरप्ट होवे ही नहीं। वन ऑफ एक्सपायरी डेट सबकी अलग अलग है और उसको फिर यूज भी होते थे। तो इसके संदर्भ में जो पैसे नहीं वापरता है तो कुदरत उसको निकाल देती, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी है, या तो फिर दुतारा पुतारा आके निकल जाएगा। तो करने का क्या, व्हाट टू डू? इसलिए दादा भगवान ने बताया कि उसको बहने दो, बस लक्ष्मी आए, यूज हो और वापस निकल जाए। इट शुड फ्लो, दैट इज द आइडियल थिंग। और उन्होंने बताया भी था कि धनवान किसको कहते हैं, धनवान यानी लोग भाषा में पैसे वाला कहते हैं। तो जिसके पास लक्ष्मी ऐसी है कि जरूरत पड़े तब आती है और उसको वापर भी सकता है, यानी उसके पास एक्सेस नहीं है, ना भीड़ ना भराव, यानी एक्सेस लक्ष्मी भी नहीं है कि जब जमा इकट्ठा हो गई, और शॉर्टेज भी नहीं है, जरूरत है तो मुझे नहीं मिल रही। आज अभी यंग है तो थोड़ी मिली, फिर बच्चे है तो थोड़ी और मिलती है, बच्चों का एजुकेशन है तो और मिलती है, शादी है तो और मिलती है। जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती है।
तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन, अपने आप को धनवान मानना चाहिए। इसके पीछे का जो उसका मर्म समझने जैसा मर्म ये है, जरूरत पूर्ति आए सो यू आर नॉट हैप्पी, आपके रिक्वायरमेंट्स टेक केयर हो गई। फिर एक्सेस आई तो आपको फिर उसका चौकीदार बनना पड़ता है। अभी इतना पैसा आया, उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, उसका फिर इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट का क्या करूंगा, फिर पैसा अच्छी जगह पे रखूँ ताकि मुझे ज्यादा नफा मिले, ऐसे रखूँ कि जैसे नुकसान ना हो। तो पूरा जो चीज है वो माइंड मनी मैनेजमेंट में चला जाता है। वैल्यूबल बहुमूल्य मनुष्य अवतार का जो समय है वो व्यर्थ में ऐसी चीजों में चला जाता है। तो हम चौकीदार बन जाते हैं हमारे एसेट से, रहने का है आत्मा में और चौकीदारी करते हैं इसकी। इसीलिए एक्सेस मनी भी हार्मफुल है, बिकॉज जो अटेंशन हमारा चित्त वृत्ति पूरी उसमें चली जाती है। और कम है तो भी नॉट डिजायरेबल, इसमें नहीं है क्योंकि हमेशा परेशानी रहती है कि खाने का कैसा करेंगे, दूसरे को का कैसे करेंगे। तो जरूरत के वो आती है और चले जाती है वो दोनों। और ये प्रिंसिपल मुझे याद है, दादा भगवान बहुत बार बोलते थे, भीड़ नहीं भरा हो नहीं એવું જોઈએ। और उन्होंने खत के लिए भी ऐसे ही रखा था कि मैनेज दिस थिंकिंग को। इसके पीछे कुदरत का एक सिद्धांत है, एवरीथिंग इन नेचर इज मूविंग। हमारे अगर देखो ना, छह तत्वों की भी बात बोलते हैं ना दादा, तो छह तत्व है, आत्मा तत्व, परमाणु तत्व, फिर गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, आकाश। हाँ? तो ये सारे तत्व एवर मूविंग, परिवर्तनशील है। तो जीव भी देखो व्यवहार राशि से आता है, पूरा व्यवहार में जाता है, सारी 84 लाख योनि भुगत के फिर मोक्ष चला जाता है। सारे संयोग ऑलवेज संयोग वियोगी स्वभाव के, थोड़े देर में बच्चे हो गए, बड़े हो गए, चले जाने वाले, घर है, आए गए, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, कुदरत है। तो उसमें हमारा आयुष्य भी एक वन ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द पूरा वो है। और इस आयुष्य में भी जो लक्ष्मी वाला भाग है वो भी फ्लो वाला भाग है, इट इज ऑल्सो मूविंग। इसे दादा ने कहा लक्ष्मी को हमेशा बहने देना, अलाउ इट टू फ्लो, इसको पकड़ना मत। एंड इफ यू सी अमेरिकन इकोनॉमी, वो पूरा उसके ऊपर है, पीपल स्पेंड इट, दे डोंट सेव, द इकोनॉमी कीप्स रनिंग। लोग नहीं है हमारे इंडिया में, तो सब जमा करने की टेंडेंसी रहती है, वो लोग है। बट इस ये जो फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वितराग मार्ग के लिए, इसको मोक्ष कहना है, इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। हाँ આપણે ક્વેશ્ચન લઈએ। हाँ हाँ, एक सेकंड, आज जस्ट पूरा कर लो। ओके। तो ये जो फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये जितना बढ़ेगा तो उतनी ये लोभ का जो बात है वो टूटेगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, मोर यू अलाउ इट टू फ्लो, बंधन में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लोभ टूट जाएगा, बिकॉज अदरवाइज भी जाने वाला ही। કશ્યપ ભાઈ। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी। मुझे ये पूछना है कि ये मन वचन ऐसे बोला था आप बुद्ध जी ने कि मन वचन का है कि एकता नहीं रहे तो पूरा फल नहीं मिलता, तो वो थोड़ा बता दीजिए। और इस ऐसा क्यों बोला जाता है कि इस काल में मोक्ष नहीं मिलेगा? मन वचन का है कि एकता नहीं होने से नहीं मिलता है कि क्या, कैसे थोड़ा समझाइए। हाँ, वो क्या है, मेनली जो क्रमिक मार्ग है मोक्ष मार्ग का, यानी त्याग करते करते कषायों का त्याग करते, संयम, कषाय का संयम कम करते, कषायों को कम करते करते और भौतिक वस्तुओं का त्याग करते करते वो मोक्ष मार्ग, ओरिजिनल मोक्ष मार्ग है वो। जैसे हम परमाणु को एग्जॉस्ट करने का वो रस है, कुछ इस अवसर में, कुछ नेक्स्ट अवसर में, कुछ इसके बाद के अवसर में। बट अभी वो रूपक रिजल्ट कब देगा? जब मन वचन काया की एकता है तो ही देगा। मन में जो है वो वाणी में है, और वाणी में जो है वो वचन में है, तो तीनों जब सिंक्रोनाइज होंगे तो इफेक्ट आ जाएगा ना। अभी आज क्या है कि उपास तो करेगा, वो सबने बोला उपास करो, अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, लेकिन किसी ने दूसरे ने घर में दूसरों के लिए कुछ अच्छा पिज्जा या पकवान बनाया तो बोलेगा फ्रिज में रखना, मैं कल खाऊंगा। यानी शरीर में काया में उपास है, लेकिन मन में पिज्जा खाने का ऐसा है। तो फिर क्या वो त्याग की जो बात है वो आता नहीं है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। पहले के अगर आप हिस्टोरिकली देखो ना, पहले तीर्थंकर या कैसा उन्हें बोले मैं घर त्याग करता हूँ, धाड़ करके मन वचन काया से फड़क से हो जाता है।
तो पूरी वो कर्म की जो निद्रा है वो 100% हो जाती है। अभी ये पार्शियल होने की वजह से मन में है तो शरीर में नहीं है, शरीर में है तो मन में नहीं है, तो वो पेंडिंग रह जाता है। इसलिए क्रमिक मार्ग से मोक्ष मार्ग, क्रम मार्ग से मोक्ष मार्ग इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, ऐसा कहना था। मतलब इसलिए निद्रा पूरी नहीं होती है। हाँ, निद्रा पूरी नहीं होती है, एग्जैक्टली। इसलिए ये अपवाद निकला है कि भाई तेरे को अक्रम ऐसा अपवाद मार्ग निकला है कि जिसमें हमें हम शरीर से ही अलग हो जाते हैं, तो शरीर में जो भी है वो निद्रा हो जाए, इस तरह से वो कहा था। तो इस काल में मतलब मोक्ष नहीं हो, इसलिए नहीं होता, मन वचन काया एकता नहीं होती है, निद्रा पूरी नहीं हो सकती। हाँ, वो मनोवचन का एकता नहीं हो सकती, वो भी है। और इतना थोड़ा डिस्चार्ज मोह की चिकनाहट भी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अक्रम प्राप्त होते हुए भी नहीं हो सकता है, थोड़ा तो बाकी रह ही जाएगा। मतलब मोह की चिकनाहट ज्यादा है। हाँ, वो तो है ही। पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो पाते। अभी देखो, राम भगवान के समय में पूरा एग्जॉस्ट हो सकता था, कृष्ण भगवान में पूरा वो हो सकता था, अभी इतना नहीं होता है, इसलिए થોડું બાકી રહે। દાદા ભગવાન કે મને કેવળ જ્ઞાન થયું, मुझे भी केवल ज्ञान हुआ, और लेकिन वापस आना टीका नहीं हुआ। तो आपने जो बोला कि ये लक्ष्मी का मतलब एक्सपायरी डेट होता है 11 साल का होता है, तो ये जो है मतलब ये समझ नहीं आया। ठीक है, एक्सपायरी डेट होता है उतना तो समझ में है, लेकिन 11 साल का ही होता है, वो कोई फिक्स होता है क्या? वो अभी कुदरत का एक कानून है जो दादा भगवान ने उनके दर्शन में देखे बताया है। तो वो वेरिएबल नहीं है क्या? हो सकता है जल्दी भी जो है चले जाए, हो सकता है थोड़ा लेट में जाए, कैसे पता चलता है? वो तो अनुभव करके पता चलेगा, और क्या बताऊं मैं। हाँ हाँ, वो तो अनुभव से आएगा ही। रखो कोई भी चीज, डोंट टच इट, फिर देखो क्या होता है। मैंने वो काउंटर एक्सपीरियंस तो देखा है। वो तो मेरा अनुभव है कि जमा करते जाओ ने, जमा करते जाओ ने, तो क्या होगा मालूम है? वो पैसा वो जाएगा जाएगा और जाएगा लक्ष्मी, इफ इट इज नॉट फ्लोइंग। हाँ, व्यर्थ के खर्चे भी हो जाते हैं, ये रिपेयरिंग हुआ, ये बिगड़ा, वो बिगड़ा, वो हो गया, फट 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 पैसा चला जाएगा। चले जाता है। हाँ, उस पे जो है मतलब उस पे बोझ नहीं होना चाहिए, उस पे उसमें मतलब पकड़ नहीं होनी चाहिए, यही आप कहते हैं ना? हाँ, इट शुड फ्लो, आए यूज हो और आगे बढ़े। इट कैन बी सेविंग्स, इट कैन बी फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स। इसलिए बोलते हैं ना, परोपकार में वापरो तो अच्छी जगह पे यूज किया लक्ष्मी को, खुद के लिए वापरो तो बेटर नहीं गया। मतलब अच्छी जगह पे उसको प्रयोग करना चाहिए, अगर जब अपने पास कुछ हो देन तो उसको अच्छे जगह पे। हाँ हाँ, अपने से अधिक है। टिपिकली दादा ने बोला था 8 to 24%, और राउंड ऑफ बोले तो 10 to 25% ऑफ योर एनुअल इनकम यू कैन गिव टू चैरिटी, डिपेंडिंग ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत ज्यादा है तो 25, बट अभी बड़ी मुश्किल से घर खर्च चलता है तो इट कैन बी रिड्यूस, इट कैन बी स्टिल लेस आल्सो, ब्रॉड प्रिंसिपल। ठीक है जी, धन्यवाद। जय सच, जय सच। यही सच्चिदानंद। ओके, थोड़ा 5 मिनट है तो देखो, गीता बहन अलवर। गीता बहन। हाँ, बोल रही हूँ। हाँ, आपका क्वेश्चन है? स्वामी जी, जैसे अपना हाँ, आत्मा का जो गुण है ना, कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, तो ये केवल ज्ञान में जाने पे अनंत दर्शन वाला सुख खुला रहता है या गौण हो जाता है? ये आत्मा के गुण है, वो अनावरण होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। गुण तो उसके आत्मा, आज जो शुद्धात्मा है, जो हमारा वो शुद्धात्मा में ये गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत हाँ, है उसके अंदर। वो तो हमको जैसे हमारा हम्म, अज्ञान भाग निकल जाएगा,
जैसे जैसे हमारे आवरण टूटते उतना उतना हमें उसका अनुभव होते जाए। हाँ, हमको आप जैसे जैसे आवरण टूटेगा आपको ज्यादा से ज्यादा धीमे धीमे ज्यादा ज्यादा समझ में आते ही ना बातें, तो दर्शन टूट रहा है आपका, आता है तो आपका ज्ञान टूट रहा है ना, तो आपको हाँ उसको जो झलक मिल रही है कि आज्ञा में रहते हो तो आनंद आता है ना, तो आनंद सुख का आपको अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे अनावरण होते जाएगा वैसे वैसे ये आपको अनुभव होगा। बाद में तो फिर वो है अपने गुण से वो परिपूर्ण है। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, बोलने का आशय इतना ही है कि गुणों की वजह से वो निरंतर शुद्ध है। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ बोलते हैं ना। ठीक है, Isabel, I think गीता बहन, हाँ बोलिए। आ गई। जैसे ये अनंत दर्शन वाला गुण है, तो दर्शन माला की जैसा है वैसा दिखाई दे, तो आत्मा को देखने की कहाँ जरूरत है वहां? वो दर्शन वाला गुण इसका स्वाभाविक गुण में कैसे आ गया? क्या स्वाभाविक गुण में कैसे आ गया यानी? हाँ हाँ, अनंत दर्शन वाला स्वाभाविक गुण में कैसे आया का मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि आत्मा का ये स्वाभाविक गुण है, क्यों क्यों कहा गया कि ये स्वाभाविक गुण है आत्मा का, देखने वाला भाग जो है? ज्ञान दर्शन वो उसके गुण है। परमाणु के भी प्रॉपर्टी, हर चीज की एक प्रॉपर्टी तो होती है ना। ये शरीर का भी अच्छा, परमाणु के गुण नहीं है, पत्थर के गुण नहीं होते, सोने के गुण नहीं होते, हाँ गोल्ड का गुण होता है कि नहीं कि उसको कभी हाँ, कभी काट नहीं लगता है, उसकी एक हम्म, डेंसिटी होती है, उसका गुण है कि हाँ नहीं? हाँ, तो हर चीज का एक गुण तो होता ही है। क्यों होता है यानी? तो आत्मा के, हाँ वो आत्मा जो तत्व है उसके गुण है। क्या गुण है? हर हमेशा कोई भी तत्व है वो द्रव्य गुण और पर्याय तीन चीज से पहचाना जाता है। हाँ, हाँ, तो ये उसके गुण है। भाई क्या है कि ज्ञान ज्ञान दर्शन चारित्र जो है तो अनंत, लेकिन जितना शब्दों में आ सकते हैं उतना उन्होंने वर्णन किया है। हाँ, ये शरीर है वो परमाणु से बना है, तो परमाणु का क्या गुण है? रस रूप स्पर्श और गंध, हाँ, उसके गुण है। तो हर 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 हाँ, तत्व होते हैं, तो ये वैसे आत्मा का गुण है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, बस तो प्रॉपर्टी है। जैसे हाँ, प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी, चेतन है वो। ये तत्वों में केवल एक ही तत्व है जिसमें देखने जानने की शक्ति है, इसलिए उसको चेतन कहा गया है। बाकी सब में किसी में जानने की शक्ति ही नहीं है। परमाणु तत्व या गति सहायक स्थिति सहायक किसी भी तत्व में ये शक्ति नहीं है, इसलिए वो हाँ हाँ, ऐसे गुण है उसका, उसमें क्या है? हम्म, हाँ स्वामी, जैसे स्वामी जी हम लोग अभी मना आत्मा के गुणों की भजना करते हैं, तो अभी तो ये आवरण से ढका हुआ है, मना अनात्मा का जो भाग है, तो अभी हमको क्या काम में लगता है वो? आपको क्या बताओ, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। देखिए कि मैं नामधारी हूँ, ये अज्ञान मान्यता है। ये अज्ञान मान्यता थी जब ज्ञान हाँ ज्ञानी पुरुष के पास से जब ज्ञान लिया, तब हमें ये राइट बिलीफ बैठी कि नहीं, मैं वास्तविकता में शुद्धात्मा हूँ। राइट बिलीफ बैठी है कि नहीं बैठी है? हाँ तो अब जब राइट बिलीफ बैठी है तो, लेकिन राइट हम आत्मा हो नहीं गए हाँ हैं। स्वामी जी, हम हमें राइट बिलीफ बैठी है, हम राइट हो नहीं गए हैं, आत्मा हो नहीं गए, हमें इसका अनुभव लक्ष्य प्रतीत भी हुआ है। अनुभव थोड़ा हुआ है, लक्ष्य थोड़ा ज्यादा है और प्रतीति 100% हो गई है। हाँ तो हाँ, ये जो अनुभव थोड़ा हुआ है, वो अनुभव को बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया गया है कि मैं पहले रॉन्ग बिलीफ थी, मैं
नामधारी हूँ, अभी राइट बिलीफ है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन खाली बिलीफ बदली हुई है। तो बिलीफ को पक्का करने के लिए वो अनंत अवतार का अभ्यास है। अनंत अवतार का जो रॉन्ग बिलीफ का अभ्यास है कि मैं नामधारी हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वो तोड़ने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, जो मैं हूँ उसकी हम भजना करते हैं ताकि हम वो स्वरूप हो जाए। राइट बिलीफ को पक्का करने के लिए रॉन्ग बिलीफ को ये वाला बीच वाला एक पुरुषार्थ है, क्योंकि हम अंतरात्मा दशा में है, हम शुद्धात्मा हो नहीं गए हैं। तो रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करने के लिए भजना है, क्योंकि वो है, वो हमारा स्वरूप ही है, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा अनुभव दशा, तो वैसे वैसे वो स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है गीता बहन, गीता बहन ओके? ठीक है स्वामी जी, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके पुलिनाथ जी, आपका टाइम थे, एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है, तो हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच जो आ रहे हैं वो अलवर के बहन जी हैं, बड़े उत्सुक है सब कुछ जानने के लिए और अच्छा अभ्यास भी करते हैं। उनमें से ये गीता बहन जो आए थे, वो सब लोग साथ में बैठकर स्वाध्याय करते रहते हैं। तो चलो आज उनको सुनेंगे। रेशम बहन शर्मा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिनाथ जी। हाँ जय जय सच्चिदानंद कांत। जय बोलिए स्वामी जी। हाँ सुनाई देता है, बोलिए आप। श्री सिमंदर स्वामी भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करें। वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। परम पूज्य श्री कल्लू दादा जी को अत्यंत भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सभी आप पुत्रों को दिल से कोटि कोटि वंदन करती हूँ और सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सबसे पहले मेरे को, मैंने एक दिन टीवी ऑन किया तो उसमें नीरू बहन का सत्संग आ रहा था। खोला मैंने तो खोल के देखा तो मैंने तुरंत बंद कर दिया। फिर बाद में मेरे को विचार आया कि क्या कह रही है, मैंने फिर टीवी ऑन किया दोबारा तो फिर सुना तो वो उसका टाइम पूरा हुआ तो खत्म हो गया था। फिर मैंने 1-2 दिन बाद फिर देखा उसको। देखने के बाद मेरे को और तो कुछ मैं समझती नहीं थी, नहीं कुछ जानती थी, पर मेरे को ऐसा लगा, ऐसा विचार आया कि काश ये अम्मा जी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जिसके बाद मैंने कभी कुछ दादा भगवान के बारे में न सुना था न जाना था, कुछ मालूम नहीं। कई साल निकल गए ऐसे ही। फिर बाद में 2011 में अलवर में किसी महात्मा ने कीर्तन भक्ति का प्रोग्राम रखे थे, सभी आप पुत्र आए हुए थे वहां पे। पहली बार मैंने वहां पे सत्संग अटेंड किया और वहाँ प्रेमानंद जी सत्संग दे रहे थे, मैंने सुना। और उसी टाइम मेरे को वो सत्संग इतना फिट हो गया अंदर कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। दूसरे दिन वो कुछ वातावरण ऐसा बन रहा था, कीर्तन भक्ति का समाप्त हो गया था तो वो आरती हो चल रही थी वहां पे। तो जब लाइन में लगे हुए थे तो मेरी बारी आई तो मेरे को कुछ विचार नहीं आया। मेरे को बस जैसे मेरी बारी आई, थाली मेरे हाथ में आई तो मेरे को बस एक ही क्वेश्चन दादाजी की तरफ निगाह उठी कि दादा मुझे आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संसार में। बस वो प्रोग्राम देख खत्म होने के बाद मेरे को हर वक्त दादा ही दादा, दादा ही दादा होता रहा, कभी उतरा ही नहीं दिल से, दिमाग से, वाणी से, कभी 1 मिनट के लिए नहीं हटा। फिर बाद में 2012 में केलनपुरी में
विधि होने वाली थी, मेरे को पता चला कि वहाँ विधि होगी, तो मैंने सोचा मैं जानो तो चाहूँ, पर मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी, माहौल ऐसा था, तो मेरे तो बाहर भी निकलना मुश्किल था। फिर हमारे एक भाभी जी वहां की कि दादाजी को तू याद कर और दादाजी का नाम लेके तू जो सास को बोल दे और वो हाँ कर दे तो चले चलना। ठीक है। तो मैंने कह इतनी हिम्मत नहीं होती जो मैं उनको बोल दूं कि मैं जाऊं या मेरे को ले चलो, कुछ मैं कह नहीं पा रही थी। तो रात को मैं सो गई तो मेरे को सपना आया एक रात को। तो सपने में क्या हुआ कि मैं बाहर थी तो किसी ने गेट पे से कुछ डाला। मैंने कहा लड़की से कि बेटा देखियो गेट पे क्या डाला किसी ने, तो वो देखी तो बोली मम्मी ये तो तेरी डाकिया था, ये तेरी चंद्रवती डाल के गया है। तो मेरे को उसी वक्त आंख खुलने के बाद मेरे को इतना बेचैन हो गया कि मेरे को चैन नहीं था, बाहर भीतर पूरा दिन निकल गया कि मैं अब कैसे कहूँ, अब तो मुझको केदारपुरी जाना ही है, सही इधर की दुनिया इधर क्यों न आ जाए। फिर मैंने सास से कहने की मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना खड़ूस स्वभाव था, वो बहुत डांटती थी। फिर मैंने लेट जाऊं तो बाहर मेरे को चैन नहीं था बाहर। फिर मैंने चाय बनाई, मैंने की चाय के बहाने उनके रूम में चले और बोले, तो मैं चाय बना के ले गई तो बोली ये चाय का टाइम है, कोई तो चाय लेके आई है, 2 बजे अभी तो। मन की मेरे सर दर्द हो रहा था तो मैं सोची मैं भी पीऊंगी, आपके लिए भी ले चलूं। तो फिर वहां बैठी रही तो मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको कैसे कहूँ जाने के लिए। फिर मैंने धीरे धीरे से बात को उनके सामने रखने की कोशिश की तो मन की वाकई में पूरे में प्रोग्राम है, फिर भाभी जहर जा रही है, मम्मी अपन भी चले। हो आई बड़ी जाने वाली, तू ये अकेले पूरे जाने, कोई जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बैठी रही वहां पे काफी टाइम तक, मेरा बच्चा भी छोटा ही था उस टाइम। फिर मैं तो बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने दादाजी को फिर याद किया उनके अंदर, वो बाहर चली गई, फिर अंदर आई, थोड़ी देर बैठी रही, फिर कह रही तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। मन की पैसे तो 500 रुपया मेरे पास रखे, आप ले लेना और बाकी का आप देख लेना। फिर उन्होंने हाँ कर दिया, बोला ठीक है कल देखते। जैसे ही उन्होंने हाँ किया, मैं तो इतने आनंद में, इतनी खुशी हुई कि अब तो शायद मैं पहुंच ही जाऊंगी, मम्मी ने हाँ कर दी तो। और वो उन्होंने हाँ किया, मेरे हस्बैंड का इतना मुंह फूल गया था कि मम्मी के प्रति भी मेरे प्रति तो था ही कि क्यों लेके जा रही है इसको, ऐसे ऐसे बोला, ने खाना खाया ने कुछ किया। सुबह हम दोनों ने निकल गए खाना वाना बना के। तो जिन्होंने एक अनुभव मेरा ये 2 महीने पहले जिन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा था, अब वो तो गए वेटिंग में। हम जनरल में, छोटा सा मेरा बच्चा साथ था 2.5 साल का, और मेरी सास और मैं, मेरा बच्चा, हम गए तो जनरल में भी हमको इतनी सीट मिली और हम इतने आनंद के साथ गए। और मेरे को दादाजी पे इतना विश्वास होगा अंदर से कि दादा तो हर याद करने की जरूरत है, हर जगह हाजिर है ही। और हम आराम से गए, वहां उतरे तो उन्होंने बाबू सिंह अंकल जी ने पूछा कि पंडित सानी कुछ परेशानी तो नहीं हुई। बल्कि ना, हम तो आराम से सीट मिल गई थी, सोते गए आए जो बोल रहे अरे तुम्हारे को दादाजी की कृपा हुई, हम तो सब बैठ के आए जो 2 महीने से रिजर्वेशन करवा रखा था। फिर बाद में वहां विधि हुई और विधि होने के बाद अच्छे से हम घर पे आ गए। और जिनके बाद फिर 2013 में पुलिनानंद जी यहाँ पे आए और उन्होंने 5 आज्ञा के वो जो समझाया और उन्हें दिया, जिनके बाद मैं उनको बताए हुए मार्ग पे चल के अनुभव किया और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और आपको कैसा महसूस होता है वो बताइए भी। आप तो पूछते रहते हैं, ये गीता बहन के साथ चर्चा करते रहते हैं ना। नहीं, मुझे बहुत आनंद में रहते हैं। और अब तो किसी के घर में कुछ होता है ना तो सब बोलते हैं उससे पूछ क्या हुआ, उसके घर में कितनी शांति रहती है, वह कौन से तांत्रिक के पास जाती है। क्या बात है। मैंने कहा मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाती, मैं तो दादाजी के सत्संग अटेंड करती हूँ, आप भी कर लो। सही बात है। अच्छा रहता है और कोई दिक्कत नहीं रहती है, आराम से रहते हैं हम सब।
बोले बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छा बता दिया। वैसे शुरुआत टीवी से हुई। दादा भगवान ने बताया था कि ये समय में सामान्य तौर पर टीवी का माहौल जो है और टीवी का जो प्रभाव है वो लोगों को नीचे गिराता है। लेकिन दादा ने बताया था कि ऐसा समय आएगा कि जो कलयुग को जो बढ़ावा देता है वही साधन कलयुग का छेद करेगा। और यही हुआ कि देखो टीवी में आपने दादा भगवान का सत्संग सुना, उसे प्रभावित हुए और दादा भगवान के प्रति आपको जानने की इच्छा हुई और फिर वो कीर्तन भक्ति में गए। कीर्तन भक्ति में तो दादा भगवान ने बताया है कि जो हमें स्वरूप से सीधा जोड़ देती है, अपने आप से जोड़ देती है और कभी जगत भूला नहीं जाता और वह जगत हम भूल जाते हैं। जैसे हम आरती करने के लिए गए तो वो स्पष्ट अनुभव हो गया, क्योंकि यहाँ ये भगवान की सीधी यानी जो हमारा स्वरूप है वो सीधी भक्ति होती है, उसे परा भक्ति कही। और जगत कभी भूला नहीं जाता, वो सहज में हम उसकी भूल जाना यानी उसकी असर में नहीं आना, उसके प्रभाव में नहीं आना। और आखिर में ज्ञान निधि का संजोग जो आया वो तो बड़ा इम्तिहान हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि सामान्य तौर पर अगर हमें कोई ना कहता है या हमें किसी को पूछना होता है तो हम उनको दोषित देखते हैं कि ये जाने नहीं देते मुझे। लेकिन आपको वो विचार नहीं आया। आपने हर बार दादा को ही डायल किया, दादा को ही फोन जोड़ दिया कि दादा बा आप ही कुछ करो, दादा आप ही कुछ करो। तो देखो कैसे संजोग बैठ गया। और ये संजोग बैठ जाने पर सीधा फिर तो आगे कुछ कहना नहीं रहा। और जैसे दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान तो कृपा से मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे अगर समझ मिल जाती है तो वो समझ से पूरा समाधान मिल जाता है कि ज्ञान क्या है वो हमारे समझ में आता है। और वो सत्संग के समझने से आपको 5 आज्ञा ही मेन है। जैसे दादा भगवान ने बताया है कि 5 आज्ञा मेरा हृदय है, वो मैं खुद ही हूँ। तो 5 आज्ञा में अगर हम रहे तो दादा हमारे पास ही है और वो हम स्पष्ट अनुभव करते हैं। और किसी ने बड़ा सही बताया है कि वो एक तांत्रिक के पास आप जरूर जाते हैं, क्योंकि वरना ये लोगों को ऐसी मान्यता है ना, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि तांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो तंत्र विद्या जानते हैं, उसका मतलब क्या है कि मंत्र जो है ना उसका अनुष्ठान करके उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की है। और वैसे अगर देखा जाए तो दादा भगवान ने हमें जो त्रिमंत्र दिया है वो किसी तांत्रिक के मंत्र से कम है। पूरा अनुभव से उन्होंने कहा है, संसार विघ्न निवारक निष्पक्षपाती दादा भगवान त्रिमंत्र। तो बिल्कुल। और ऐसा दादा भगवान के स्वरूप के बारे में, ज्ञानी पुरुष के स्वरूप के बारे में ऐसा बताया है कि वो भुआओं के भी बुआ है। वो भुआ बोलते हैं ना, हम बुआ बोलते हैं, वो बुआओं के भी बुआ होते हैं। तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं ये सब बातें। एक तो बातें बताता हूँ कि एक बार ऐसी जब बातें सुनी तो जो ऐसी साधना करते हैं तो उनको ऐसा लगा कि ये दादा भगवान क्या चीज है करके, मैं तो उनको ऐसे चुटकी भर में उनको हरा दूंगा। बोले मैं त्राटक का बहुत अभ्यासी हूँ। तो दादा भगवान के पास चले गए और उनको चुनौती जैसे दी। दादा भगवान ने कहा अभी छोड़ो ना, क्या बात करते हैं आप, ये सब ऐसे, इसकी क्या जरूरत है। वो बार बार दादा को बता रहे कि आप मेरी आंखों के सामने देखो, आप मेरी आंखों के सामने देखो। दादा ने कहा अभी छोड़ो ना, इसकी क्या जरूरत है। और ऐसी एक परिस्थिति आ गई, दादा ने कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करते हैं।
दादा ने उनके सामने देखा तो उन्होंने त्राटक किया दादा के ऊपर। दादा भगवान बताए कि दादा भगवान ने उनके ऊपर त्राटक किया तो बोले कि उनके तेज से उनकी नजर झुक गई और बोले क्षमा करो, बंद करो ये। दादा भगवान को ऐसा नहीं था कि किसी को हराए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये एक परिस्थिति हुई थी कि ऐसा भी है, यानी ज्ञानी पुरुष हो तो बुआ के बुआ है, उनको कहाँ चुनौती देंगे आप। और ये जो हमें मिल गया है, सभी हमारे पाप कर्म भस्मीभूत हुए हैं और इसीलिए तो हम मजे में रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला स्वामी जी। वो तो जो कोई पड़ोस में होते हैं ना, वो बोलते हैं कि इनके घर में शांति रहती है, ये कौन से तांत्रिक के पास जाती है, मैंने नहीं कहा। नहीं, बात सही है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं ना, क्योंकि ऐसा ही जानते हैं कि ऐसा कहीं जाते होंगे तो ही शांति होगी, लेकिन यही तो सही समझ की शांति है, पूरे समाधान की शांति है, जो दादा भगवान ने पूरा विज्ञान खुला, जीवन विज्ञान खुला किया है, वो जो हमें मिला है और वो 5 आज्ञा में ऐसे एक मुट्ठी में करके दे दिया है और वो हमें मिला है। बहुत बहुत आभार रेशम बहन, धन्यवाद आप आए। हमें एक और बात जानने मिली कि दादा भगवान तो तांत्रिकों के भी तांत्रिक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुरीनारायण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे 5 आज्ञा का सत्संग लिया था उन्होंने, अलवर गए थे तब। नहीं, बस जिन्होंने भी ऐसा तो है ना, आज्ञा का तो जितना हम खुद समझते जाए उतना और अपनी गंभीरता, उसका मर्म पकड़ते आता है। आज भी हम भी आज्ञा को और अच्छी तरह से समझने के पुरुषार्थ में, और जैसे जैसे हम खुद को समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है नो। तो आज्ञा में एक ही शब्द में कहूंगा, दादा भगवान बोले थे कि 5 आज्ञा के अंदर ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आ गया। इस ब्रह्मांड का एक परमाणु 5 आज्ञा के बाहर नहीं है, एक उनकी एक स्टेटमेंट है। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है ओहो कितना सब कुछ समाविष्ट कर दिया है, बस इसके पीछे लगने जैसा है। जिस दिन स्वामी जी आपने समझाया ना, मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि अब लगाम छोड़नी ही है आज से। आपने कहा ना, एक दिन मेरे वो ऐसा फिट बैठ गया था कि शुद्ध आत्मा समय देखना है, अपने लगाम छोड़ के देखो, उपयोग करके देखो एक दिन के लिए। तो मेरे को एक दिन में इतना अनुभव हुआ, और मैं तो एक दिन क्या, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया। अरे वेरी गुड। लगाम अगर हमेशा के लिए छूट जाए तो दादा भगवान की स्थिति में आ जाते हैं। दादा भगवान ने पूरी लगाम, पूरा लघुत्तम भाव जो भी बोलो छोड़ दिया था हमेशा के लिए। वो संजोग के अनुसार ऐसा बस, जिसको बोलते हैं फ्लोट होते थे, तैरते थे बस ऐसा। तो बहुत बड़ी बात है। वो व्यवस्थित शक्ति का पचन भी हो जाता है और अपना लगाम भी छूट जाती है। तो दादा बोले आनंद अंदर ही, हमारी मान्यता और पकड़ ने हमको दुख दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया अनुभव, बहुत अच्छा। अब किसी को दखल करने की जरूरत नहीं समझते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। आनंद में रहते हैं। हाँ पुरीनारायण जी, हाँ ये जैसे बताया ना कि उनका रहस्य मिल गया, घर में शांति क्यों है, लगाम छोड़ी तो। हाँ हाँ सभी महात्माओं को ऐसा सीखने जैसा है। हाँ कि एक लगाम छोड़ने से घर में इतनी शांति हो गई कि बाहर वालों को लगा ये कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जाके आए क्या। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, दैट इज द ब्यूटी। बाहर के लोग जब सर्टिफिकेट देते हैं ना तो हमको एक तो हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि यस क्या करें। मेरे पियर वाले भी बोलते हैं इस बात को, तो बोलते कि हम जब भी फोन करते कुछ ना कुछ वो शिकायत करते रहते, तू कभी दुखी नहीं होती है कि अभी फोन पे कुछ शिकायत ही नहीं करती। हाँ बल्कि ना मेरे को कुछ दुख ना है, बल्कि मैं परमानंद में हूँ। हाँ बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जय सच्चिदानंद। रजनी भाई। बहुत अच्छा रेशमा बहन, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और आपका प्रगति तो बहुत अच्छा है। तो अभी पुलितान जी 3 मंत्र बुलाएंगे, आप फॉलो करें। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरियंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम,
नमो लोये सवसावनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो अवभावपणासनो सव्वपावपणासनम मंगलाणं च सवेसं मंगलानं ते सव्वेषु परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।